Hello students. Okay, time to solve mathematics workbook. So everyone must have to open mathematics workbook part 2, and today we are going to solve the first chapter, that is the chapter number 7, time, from our mathematics workbook part 2. Okay, so here let us solve the concept 7.1. Read a calendar. Let us solve the recall section. So it's so easy. Recall multiple choice questions. क्या दिया है? There are dash dash days in a week. It's so simple. कितने days होते week में? 7 days in a week. So our option B is the correct option. So write down B over here. And here we must have to write the 7. The month just before November is, तो नवंबर से पहला वाला मंथ कौन सा आता है? यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर. अक्टूबर के बाद नवंबर आता है. सो दैट इज आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो राइट डाउन हियर ए and we must have to write down here October, OCTOBER, October. The day after Wednesday is, वेनसडे के बाद आने वाला दिन कौन सा होता है? वेनसडे के बाद आता है थर्सडे. जैसे कि आज के बाद कौन सा दिन आएगा? कल का. यस, थर्सडे. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी. सो राइट डाउन सी over here, and here we must have to write down Thursday. Okay students, so now let us solve the remembering and understanding section. First, multiple choice question. Question number 4. The month of July has dash dash days. तो हमें काउंट करना है जुलाई मंथ को. चलो काउंट करते हैं. तो जैसे हमें काउंट करने, देखो जनवरी को कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई. ठीक है, काउंट कर दे तो कुछ इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं. जनवरी को होते हैं हमारे 31, फरवरी को होते हैं हमारे 29 और 30, मार्च को होते हैं हमारे फिर से 31, अप्रैल को होते हैं 30, मई को होते हैं 31, जून को होते हैं हमारे 30 और जुलाई के होते हैं हमारे 31. सो द मंथ ऑफ जुलाई हैज़ 31 days. So our correct option is the option D, 31 days. Okay, we celebrate Independence Day in the month of, कौन से मंथ में होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे? यस, हम कहते हैं ना 15th August. यस ना, 15th August is our Independence Day. So the month is the August month. So our correct option is the B, and we have to write down here August, AUGUST, August. Okay, now Christmas is celebrated on the dash dash December. तो आप कैलेंडर में भी देख सकते हो कि हम 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी. सो राइट डाउन हियर 25th, and here we must have to write down the C. Okay, now the next question is the fill in the blanks. Question number 7. The calendar that we use every day is the Gregorian calendar. Okay, so ये हमारा Gregorian होता है. इसका जवाब यहाँ पर है. The calendar that we use is called the Gregorian calendar. Which calendar? Gregorian calendar. So we have to write down the same answer here. Gregorian calendar. GREGORIAN, Gregorian calendar. Children's Day celebrated on dash day. तो चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं बच्चों? सो यस, चिल्ड्रंस डे आपको याद है, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम, स्कूल में भी हम मनाते थे चिल्ड्रंस डे. दैट इज डन ऑन नवंबर मंथ. ऑन विच डे? यस, 14th November. तो देखो आप अगर घर में कैलेंडर देखोगे तो कैलेंडर में आपको इस तरह से नज़र आएगा. देखो यहाँ पर लिखा है, जैसे हमारा इस साल दिवाली थी, उस दिन उसी दिन था. देखो पंडित नेहरू जी की जयंती थी और बाल दिन वहाँ पर लिखा हुआ है. सो बाल दिन मतलब ही हमारा होता है चिल्ड्रंस डे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th November. ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर 14th
November. Okay, so now let us turn the page and open the page number, yes, page number 2. Okay students, so we do have here the page number 2. Let us solve the 9th one example. If the first of the month is a Tuesday, then the third of the same month will be a, देखो फर्स्ट कौन से को आई है, ट्यूसडे को आई है, तो थर्ड कब आएगी, देखो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को आएगी हमारी सेकंड डेट, और थर्सडे को आएगी हमारी थर्ड डेट. सो हमारी थर्ड डेट आएगी यहाँ पर थर्सडे को. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर THURSDAY, that is the on Thursday. Now let us solve very short answer questions. Observe the calendar and answer the following questions. Here we do have the January 2019 month, and from observing that month we must have to solve the following examples. चलो सॉल्व करते हैं फिर एग्जाम्पल. हाउ मेनी ट्यूसडे आर देयर इन जनवरी 2019. तो चलो हमें ट्यूसडे काउंट करने हैं. देखो कितने हैं तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 and 5. So there are 5 Tuesday in January 2019. So there are 5 Tuesday in January 2019. Okay, so that is our answer. Second, 11th question is, on which day does the Happy New Year, that is the 1st January 2019 fall? तो कौन से डे पर है, देखो जनवरी में, जैसे अभी अगले साल हम 2020 का मनाने जाने हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट डे क्या होता है हमारा कि हैप्पी न्यू ईयर का होता है. तो कौन से डे पर आया है ये, तो ये आया है फर्स्ट हमारा आया है ट्यूसडे को. कब आया है, ट्यूसडे को. सो हम क्या लेते हैं, ऑन ट्यूसडे. ओके, सो नाउ 12th वन एग्जाम्पल है हमें, रिपब्लिक डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द वीक. तो ये कौन से डे पर यहाँ पर मनाया जा रहा है. चलो फिर चेक करते हैं यहाँ पर कि रिपब्लिक डे कब आता है हमारा, 26 जनवरी को आता है हमारा रिपब्लिक डे. तो यहाँ पर सैटरडे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि ऑन सैटरडे वी कैन सी ओवर हियर दैट इज द 26 डेज इज देयर, और 26 डेट इज देयर. सो वी कैन राइट हियर ऑन सैटरडे that is 26 January, on Saturday, that is 26 January. Okay, short answer questions now. Observe the calendar and answer the following questions. ऊपर कैसे आपने ऑब्जर्व किया उसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पर अक्टूबर 2019 का कैलेंडर, और आपको यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने. फर्स्ट है हमारा यहाँ पर सवाल 13 में से A1, लिस्ट आउट द डेट्स विच फॉल ऑन संडेज इन अक्टूबर 2019. तो हमें क्या करनी है, लिस्ट करनी है उन डेज की, डेट्स की उनकी लिस्ट करनी है जो संडेज को आते हैं अक्टूबर 2019 को. तो हम ए का आंसर लिखेंगे. ए लिखकर संडे कौन कौन सी डेट को आता है चेक करेंगे. देखो 6th 13th 20th एंड 27th. तो ये होंगे हमारे 4, दैट इज द 6th 13th 20th and 27th. That is the Sunday fall on that 4 days. Okay, 4 dates are 6th 13th 20th and 27th. Then we have to write down the answer of the question B. On which date is the first Sunday after 17th October? 17th October के बाद पहला संडे कौन से दिन आता है आपका.
तो यहाँ पर पहले तो चेक करेंगे हम 17 अक्टूबर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आती है, देखो यहाँ पर थर्सडे को ये यहाँ पर आ रही, देखो थर्सडे को 17 अक्टूबर आए। तो 17 अक्टूबर के बाद देखो 18 को आता है फ्राइडे, 19 को आता है सैटरडे एंड 20 को आता है आपको संडे। सो यू कैन से दैट 20 अक्टूबर को क्या आ रहा है हमारा, संडे आ रहा है आफ्टर 17 अक्टूबर से। सो दैट इज आवर आंसर इज द 20 अक्टूबर। नाउ let us move ahead and come to the page number 3. So we do have here the 14th example. Observe the calendar of October 2019 and answer the following questions. On first है, on which date and day does गांधी जयंती fall? तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि गांधी जयंती कौन से डेट पर आपको आती है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर कि गांधी जयंती, तो हमें पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। ये तो हम स्कूल में भी मनाते हैं गांधी जयंती। कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। ठीक है, सो वी कैन से हियर ए का हम जवाब लिख सकते हैं, दैट इज ऑन 2 अक्टूबर। चलो फिर हमें डे यहाँ पर चेक करना है, 2 अक्टूबर को कौन सा आता है। यहाँ पर अगर चेक करते तो डे आता है हमारा यहाँ पर यस वेडनेसडे, दैट इज ऑन वेडनेसडे। तो हम यहाँ पर वेडनेसडे लिखेंगे यहाँ पर। दैट इज ऑन वेडनेसडे। लेट्स सॉल्व द B1. लिस्ट आउट द डेट्स विच फॉल ऑन सैटरडे इन अक्टूबर 2019। तो चलो हमें लिस्ट करनी है डेट्स की जिनमें क्या है सैटरडेज आए हुए। तो देखो सैटरडेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होंगे कि 5th, 12th, 19th एंड 26th को क्या है यहाँ पर सैटरडे है। सो वी कैन लिस्ट आउट लाइक दैट 5th, 12th, 19th and 26th. Okay, that are the days of October, that is the dates of October on which Saturday fall. Okay, now let us solve the long answer questions. We do have April 2019 calendar here. Observe the given calendar and answer the following questions. A है हमें यहाँ पर list the days on the 4th, 17th, 19th and 23rd of April 2019. तो हमें यहाँ पर डेज क्या करने हैं, यहाँ पर मेंशन करने हैं कि 4th को कौन सा डेज है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। ए का सवाल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखो 4th को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 4th को आता है थर्सडे। 17 को देखेंगे तो 17 को आता है वेडनेसडे। 19 को चेक करेंगे तो 19 को आता है मेरा फ्राइडे। और 23rd को अगर फिर से चेक करते हैं तो 23rd को आता है हमारा ये ट्यूसडे। चलो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि कौन से डेज आते हैं यहाँ पर कि 4th को आता है यहाँ पर थर्सडे। ठीक है, 4th थर्सडे इज देयर। देन 17 को है हमारा 17 को है यहाँ पर वेडनेसडे। देन वी हैव 19 को है 19 को है यहाँ पर फ्राइडे। और 23rd को है यहाँ पर, चलो चेक करते हैं, 23rd को आता है ट्यूसडे। सो हमने डेट्स की लिस्ट यहाँ पर बना दी है। नाउ लेट अस सॉल्व द B1 एग्जाम्पल। ऑन विच डेट डज द सेकेंड सैटरडे आफ्टर 11th अप्रैल फॉल। देखो 11th अप्रैल के बाद जो सेकेंड सैटरडे आ रहा है तो वो कौन से डेट पर आ रहा है। तो देखो फर्स्ट जो होता है सैटरडे वो है 6 पर। उसके बाद 11th अप्रैल, तो 11th अप्रैल यहाँ पर है। 11th अप्रैल के बाद आने वाला फर्स्ट सैटरडे है हमारा 13th अप्रैल को। कब है हमारा 13th अप्रैल को।
So we can write down the answer for the B1, 13th April 2019 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 13 अप्रैल 2019 को आता है हमारा यहाँ पर सेकेंड सैटरडे। नाउ लेट अस सॉल्व द C1 क्वेश्चन आंसर। विच डेज अपीयर 5 टाइम्स इन दिस मंथ। तो कौन कौन से डेज यहाँ पर क्या है 5 टाइम्स आ गए हैं यहाँ पर। विच डेज, तो देखो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे चेकआउट करेंगे तो देखो मंडे आया है यहाँ पर 1 2 3 4 5, उसी के साथ ट्यूसडे भी यहाँ पर आया है देखो 1 2 3 4 5। सो मंडे एंड ट्यूसडेज आर द डेज दैट अपीयर द 5 टाइम्स इन दिस मंथ। सो वी कैन राइट डाउन मंडे एंड ट्यूसडे appear 5 times. Okay, now let us solve the D1 example. On which date does the 4th Sunday fall? तो हमारा 4th संडे कौन से डेट पर आया है ये हमें चेक करना है। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मंथ में जो पहला दिन आता है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट संडे, ये हो गया हमारा सेकेंड संडे ऑफ द मंथ, ये हो गया हमारा थर्ड संडे ऑफ द मंथ, और ये हो गया हमारा फोर्थ संडे ऑफ द मंथ। तो फोर्थ संडे फॉल हो रहा है यहाँ पर हमारा 28 अप्रैल को। सो वी कैन राइट डाउन हियर 28 अप्रैल 2019। सो दैट इज द डेट फॉर द फोर्थ संडे ऑफ द अप्रैल 2019। नाउ लेट अस ऑब्जर्व the 16th one example. Observe the given calendar and answer the following questions. A1 है how many days are there in February 2019। चलो उसकी जवाब हमें आगे लिखने होंगे। सो पहले का है क्या कि how many days, ओके कितने डेज हैं हमारे फरवरी 2019 में। सो 1 से लेकर यहाँ पर कितने हैं 28 days are there. So you can write down here एक ऑप्शन आएगा हमारा 28 days. Now let us write down the B1. What are the days on the 26th, 15th and 11th February 2019। तो कौन कौन से डेज है चेक करते हैं। 26 को है यस 26 को है यहाँ पर ट्यूसडे दिखाई दे रहा है हमें, 26 को है ट्यूसडे। ओके 15 को है चेक करेंगे 15 को है यहाँ पर फ्राइडे, और 11th को है यहाँ पर मंडे। सो वी कैन राइट डाउन द डेज। 26 को है हमारा 26 को आता है चेक करते हैं 26 को आता है ट्यूसडे। सो वी कैन राइट डाउन Tuesday for 26, then for 15th को आ रहा है हमारा फ्राइडे। 15th को we got a day Friday, ओके एंड 11th को आ रहा है हमारा 11th को आ रहा है यहाँ पर मंडे। 11th को आ रहा है कौन सा हमारा मंडे। ओके सो वी आर कंप्लीटेड आवर आंसर। नाउ द एग्जाम्पल सी ऑन विच डे डज द फर्स्ट सैटरडे ऑफ फरवरी 2019 फॉल। तो देखो पहला सैटरडे कब आता है। यस अगर मंथ की शुरुआत 1 तारीख से हो रही है तो फर्स्ट सैटरडे आता है। सेकेंड जो हमारा मंथ का सेकेंड डेट है तो सेकेंड डेट को उनका क्या आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट सैटरडे आ रहा है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो सेकेंड यहाँ पर लिखना है हमें उसका जवाब। तो फर्स्ट सैटरडे इज़ ऑन 2 फरवरी 2019। फर्स्ट सैटरडे is on 2nd February 2019. Let us write down the last question answer. We do have last question over here. On which day
डज द 20th फरवरी 2019 फॉल। तो कौन से डे पर 20th फरवरी आ रही है, चेक करते हैं। तो 20th फरवरी आ रही है हमारी थर्सडे पर, सो यू कैन राइट आउट डाउन ऑन थर्सडे। सो डी ऑप्शन का यहाँ पर है कि ऑन थर्सडे। ओके, दैट इज आवर राइट आंसर। So now let us solve the application level example part over here. So now short answer question say list out the birth dates of any 4 members of your family. So that example is for your homework part. आपको आपके घर के किसी भी 4 मेंबर्स के क्या करने हैं, बर्थ डेट्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखने हैं, उनकी बर्थ डेट्स लिखनी है। Now let us solve the 18th one example. Ritu is a school teacher. She has holidays on Sundays. She also has holidays on the 2nd and the 4th Saturday. How many total holidays does she have in September 2019? देखो, रितु क्या है, स्कूल टीचर है, तो उसको संडे को हॉलीडे होता है, लेकिन साथ में ही 2nd और 4th सैटरडे को भी उसको क्या होता है, एक हॉलीडे होता है। तो कितने टोटल हॉलीडेज उसको मिलेंगे यहाँ पर? देखो, संडे को एक हॉलीडेज होता है और अल्सो शी हैज़ हॉलीडेज ऑन द 2nd and 4th सैटरडेज। हाउ मेनी टोटल हॉलीडेज डज शी हैव इन सितंबर 2019? तो चलो काउंट करते हैं। तो देखिए संडे कितने आते हैं, तो 1 2 3 4 5, सो 5 संडेज आएंगे। और यहाँ पर 2nd और 4th सैटरडे, तो देखो यहाँ पर मंथ का ये फर्स्ट सेट आ गया सैटरडे और ये हो गया 2nd सैटरडे। तो यहाँ पर देखो ये 14th और ये 15th, ये भी हमें काउंट करना है। और उसके साथ 4th सैटरडे होगा यहाँ पर हमारा 28 को, तो 28 ये भी हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो देखो संडेज, टोटल संडेज, तो हॉलीडेज ऑन संडेज ये कितने होते हैं हमारे, हॉलीडेज ऑन संडेज कब कब हैं वो, 1st 8th 15th 22nd एंड 29th। दैट इज़ टोटल कितने हो गए, सो दैट इज़ 1 2 3 4 5 संडेज आर देयर, 5 संडेज and 2 Saturdays and holidays on Saturday, that is on 14th and 28th, that is 2 Saturdays, 2 सैटरडेज आ गए यहाँ पर। सो टोटल हॉलीडेज आर, सो टोटल हॉलीडेज इज इक्वल टू आएगा हमारा 5 + 2, दैट इज द 7 डेज। कितने डेज होंगे हॉलीडेज को, 7 डेज मिलेंगे रितु को हॉलीडेज के लिए, इंक्लूडिंग 2nd and 4th Saturday and also all Sundays. Okay, so now let us solve the example number 19 from the page number 5. Okay students, so we do have here Anu wants to plan her holiday to Hyderabad. On the calendar, mark the days for her holiday if she starts on a Saturday and ends on a Tuesday. Anu has to take on overnight journey from her place to Hyderabad. चलो फिर हमें हॉलीडेज उसको प्लान करने हैं उसको, लेकिन कब वो प्लान करना चाहती हैं कि इफ़ शी स्टार्ट्स ऑन सैटरडे एंड एंड्स ऑन अ ट्यूसडे। तो यहाँ पर सैटरडे को उसको स्टार्ट करना है और एंड को करना है ट्यूसडे को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अनु हैज़ टू टेक एन ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम हर प्लेस टू
हैदराबाद, क्योंकि उसको क्या करना है, ओवरनाइट जर्नी भी यहाँ पर करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सैटरडे जो है तो कब कब वो अपना हॉलीडे प्लान कर सकती हैं। सो देखो, उसको स्टार्ट करना है सैटरडे को और एंड करना है यहाँ पर ट्यूसडे को। तो अगर वो स्टार्ट करती है तो देखो पहले वीक में तो ये 3, 4, 5 और 6 इन दिनों भी हो जा सकती हैं, नहीं तो वो उसी महीने सैटरडे को मतलब सेकेंड सैटरडे को भी स्टार्ट कर सकती है जर्नी, और यहाँ पर सेकंड ट्यूसडे तक भी उसकी जर्नी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो ये भी डेट उसको मार्क्स हो सकते हैं, नहीं तो वो थर्ड सैटरडे को स्टार्ट कर सकते हैं अपने हॉलीडे प्लान और थर्ड ट्यूसडे को ही एंड कर सकती हैं, और आइदर वो फोर्थ सैटरडे को स्टार्ट कर यहाँ पर फोर्थ ट्यूसडे तक क्या कर सकती है, अपना प्लान कर सकती हैं हॉलीडेज़ का। सो यहाँ पर हमें ये मार्क्स करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये आता है कि फर्स्ट वीक में, नहीं तो फर्स्ट प्लान होगा उसका 3rd, 4th, 5th एंड 6th। सेकेंड प्लान होगा उसका कि 10th को जाओ और 13th तक यहाँ पर हॉलीडेज़ मनाओ। थर्ड प्लान होगा उसका मे बी 17th को जाना है और 20th तक यहाँ पर उसको प्लान कर सकती हैं, और फोर्थ प्लानिंग वो कर सकती है 24th को, दैट इज़ द लास्ट वीक, सेकेंड लास्ट वीक में, और यहाँ पर लास्ट वीक में भी उसका प्लान आ सकता है ट्यूसडे को, दैट इज़ द 27th ट्यूसडे को। सो शी कैन प्लान और वी कैन से दैट अनु कैन प्लान her holidays like below। तो बिलो हम प्लान देंगे, दैट इज फर्स्ट चांस आएगा ऑन 3rd, 4th, 5th एंड 6th अगस्त, तब भी वो प्लान कर सकती हैं। सेकेंड प्लान होगा ऑन 10th, 11th, 12th एंड 13th अगस्त को भी हो जा सकती है, और ऑन 17th, 18th, 19th और 20th अगस्त को भी अनु क्या कर सकती है, अपना प्लान बना सकती है। अल्सो फोर्थ प्लान होगा उसका कि ऑन 24th, 25th, 26th एंड 27th अगस्त को भी अनु क्या कर सकती है, खुद के प्लान हॉलीडेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती है। तो ये 4 प्लान्स हैं अनु के पास टू सेलिब्रेट हर हॉलीडेज, ओके, इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये जर्नी स्टार्ट कर सकती है वो कहाँ पर कि 3rd को स्टार्ट कर सकती है और 6 को यहाँ पर कर सकती है, आइदर 10 को कर सकती है और 13 को कर सकती है, आइदर 17 को स्टार्ट करके 20 को कर सकती है कंप्लीट, और 24 को स्टार्ट करके 27 को कर सकती हैं, बिकॉज शी वॉन्ट टू स्टार्ट्स on Saturday and ends on the Tuesday, okay। So now let us move ahead and go to the example 20। Observe the given calendar and answer the questions। क्या questions दिए यहाँ पर फिर हमें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है A1, we have to observe the July 2019 on which date does the first Saturday of this month fall। तो फर्स्ट सैटरडे कब आया है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को यहाँ पर फर्स्ट डेट आया है, तो यू कैन से दैट द A1 आंसर इज द 6th जुलाई। कब आया यहाँ पर, 6 जुलाई को। B1 का आंसर लिखेंगे, चलो वी डू हैव ऑन विच डे डज दिस मंथ बिगिन, कौन से डे पर वो मंथ बिगिन हो रहा है, यस आवर मंथ बिगिन ऑन मंडे, सो ऑन मंडे is our answer। let us solve the C1 on which date is the second Friday। तो चलो चेक करते, फर्स्ट फ्राइडे आएगा हमारा 5th का,
और सेकेंड फ्राइडे आता है देखो उसी के नीचे ही बिल्कुल अब 12th जुलाई को। सो 12th जुलाई इज़ आवर सेकेंड फ्राइडे। D1 है यहाँ पर। ऑन विच डे डज द नेक्स्ट मंथ बिगिन। तो देखो यहाँ पर एंड कब हो रहा है यहाँ पर हमारा ये मंथ, तो जुलाई हमारा एंड हो रहा है 31st, दैट इज़ द ऑन वेडनेसडे को। तो चलो उसके बाद थर्सडे को नेक्स्ट मंथ क्या होगा हमारा बिगिन होगा। तो ऑन थर्सडे नेक्स्ट मंथ बिगिन, नेक्स्ट मंथ क्या होगा हमारा बिगिन होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ लेट अस टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर देयर इज अ पेज नंबर 6 और ईयर। आइडेंटिफाई द लीप ईयर इन द फॉलोइंग ईयर्स। इसमें हमें लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो यस, हम क्या करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं, मतलब 4 से डिविजिबल है, तो वही हमारा क्या हो सकता है, एक लीप ईयर हो सकता है। अगर हम यहाँ पर फिर लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे, लेट्स चेक लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर टू चेक लीप ईयर। जिसके हमें पता था अगर वो 4 के टेबल में आता है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो वही होता है। तो चलो चेक करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे किसको, 13 को। बाद में हम डिवाइड करेंगे चलो किसको, 16 को। बाद में हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 19 को। और बाद में हमें डिवाइड करना है यहाँ पर 22 को। तो किसको डिवीजन कंप्लीट होती है, वही हमारा लीप ईयर होगा। देखो 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पर भी हमारे डिवीजन कंप्लीट नहीं हुए, रिमाइंडर बाकी रहा है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड में जहाँ पर 16 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पर हमारी डिवीजन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वेश्चन आ रहा है 4। यहाँ पर 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पर भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है डिवीजन। और यहाँ पर भी 4 5 ज़ार 20, तो 2 रिमाइंडर रहता है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है। डिवीजन कंप्लीट कब हो रहा है, एक 16 आने तक। तो 16 कब और कहाँ पर है, तो 2016 यहाँ पर है। ठीक है, सो वी कैन से दैट वी कैन से 2016 is a leap year because its last 2 digits divisible by 4। ये completely divisible by 4 से है। सो यू कैन से दैट 2016 इज़ अ लीप ईयर। और उसी मंथ में क्या आएंगे, फरवरी के 29 क्या आएंगे, डेज आएंगे। ओके, 29 डेज आएंगे। नाउ आदित्य वॉज बॉर्न ऑन 29 फरवरी 2000। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे वंस इन अ 4 ईयर। वाई? ओके, सो 29 फरवरी इज ये का था हमारा, वेन एवर देर इज़ अ लीप ईयर देन ओनली in the month of February 29 days are there. Okay, so 29 डेट कब आती है फरवरी में, whenever there is a leap year. so वो हमेशा 4 साल बाद ही उसका क्या कर सकता है, बर्थडे मना सकता है। कौन? आदित्य। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज 29 February is a leap year date. It comes in February month after 4 years. So Aditya celebrates his birthday
वंस इन अ 4 years। ठीक है, इसलिए आदित्य क्या कर सकता है, उसका बर्थडे 4 साल बाद ही एक बार मना सकता है। देखो 29 को जिनकी बर्थडे आती है लीप ईयर में, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हर साल क्या होगा, फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 ही होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर इस साल में हमारे 29 डेज है, क्योंकि ये लीप ईयर है हमारा। देखो अभी 2020 अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये लीप ईयर आता है, लेकिन आदित्य को ऐसे नहीं होगा। वो कैसे कब चेक कर सकता है कि तो कब मना सकता है वो अपना बर्थडे, कि हर 4 साल बाद ही, 4 years, once in a 4 years। Okay students, so I hope so that all question answers you understand very well. Bye bye for now, take care. The remaining part we will solve after some time.